गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2A द आइज हैबिट। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने बुक्स को ले आएं, अपने पास रखें, ताकि आप अपने बुक में ये सारी जो लाइन्स हैं उसको आप देखें और अपने फिंगर्स को रखें जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगी, ताकि आप भी उस सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन समझ पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विल रीड फर्स्ट बिफोर यू रीड। Most of us visit our relatives and friends living in a far off places. Long journeys by bus or train provide us good opportunities to meet new people. Though we come across many co-passengers, we remember a few of them because of their uniqueness. Now read this interesting story about two such co-passengers. बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो ऐसे होते हैं जो दूर रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनके घर जाने के लिए, उनसे मिलने जाना अगर हमें होता है तो आइदर हम बस चूज़ करते हैं या फिर ट्रेन। और इस दौरान हम बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं और नए-नए लोगों से मिल के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और कुछ ऐसे भी को पैसेंजर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी साथ में यात्रा करने वाले लोग होते हैं, जिनकी कुछ अजीब-सी बातें या फिर अनोखी बातें हमें हमेशा याद रह जाती हैं और साथ ही साथ वो लोग भी हमें बहुत दिनों तक याद रहते हैं। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें पढ़नी है, ऐसे ही 2 को पैसेंजर्स के बारे में, 2 सहयात्रियों के बारे में, जो कि इस स्टोरी में है। सो लेट्स स्टार्ट। I had the compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off was probably her parents, as they seemed very anxious about her comfort. The woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, when to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. यहाँ पे जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि वो रोहाना के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं, तभी वो जैसे ही वो ट्रेन पे चढ़ते हैं, एक लड़की भी उनके कंपार्टमेंट में आती है। और जो 2 व्यक्ति, जो कपल, जो जोड़ा उनको छोड़ने के लिए, उस लड़की को छोड़ने के लिए आया था, वो ज़रूर उनके माता-पिता होंगे, क्योंकि वो उस लड़की के कम्फ़र्ट, उसके आराम के बारे में बहुत चिंतित थे। और वो वुमन जो आई थी उस लड़की के साथ, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वो दे रही थी उस लड़की को कि कहाँ तुम्हारे चीज़ें रखी हुई हैं, कब तुमको खिड़की से बाहर झुक के देखना है, कब नहीं देखना है, और कैसे उसको अजनबियों से बात नहीं करना है। ये सारी चीज़ें वो बता रही थी। ओके, आगे चलते हैं, क्या होता है स्टोरी में। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going all the way to Dehra? I asked. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little explanation and said, I didn't know anyone else was there. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see have to take in only the essentials, whatever registers tellingly on their remaining senses. I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. Where are you going? She asked. To Dehra and then to Masuri. Oh, how lucky you are! I wish I was going to Masuri. I love the hills, especially in October. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted.
Yes, October is the best time. So what is happening over here? सो फर्स्ट पेज में हमने जाना कि कैसे वो एक लड़की भी उनके कंपार्टमेंट में, जो राइटर हैं उनके कंपार्टमेंट में आके बैठती है, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो सारा डिटेल इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं कि कैसे सामान कहाँ रखे हैं तुम्हारे, और कैसे अजनबियों से नहीं बातें करनी है। एंड इस समय जब राइटर इस स्टोरी को लिख रहे हैं, उस टाइम वो टोटली ब्लाइंड थे, और उनको सिर्फ इतना ही समझ में, उनकी आंखों को बस इतना ही पता चलता था कि कहाँ लाइट है और कहाँ डार्कनेस है, और कैसी वो लड़की दिख रही थी इसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। बट उनको सुनाई दे रहा था कि उनके हिल्स, उनके स्लीपर्स के जो साउंड है वो बहुत अच्छे लग रहे थे। उस लड़की के स्लीपर के साउंड उनको अच्छे लगे, और साथ ही साथ वो उससे बात करने का भी शुरुआत करते हैं। What he is asking that, are you going all the way to देहरा? I asked, क्या तुम पूरे देहरा तक जाओगी? ओके, मस्ट बी वो ट्रेन जो है वो देहरा तक लास्ट स्टेशन होगा, ऐसा इसलिए उन्होंने उससे पूछा। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई बैठा हुआ है। ठीक है, सो राइटर सोचते हैं कि शायद मैं बहुत अंधेरे कोने में बैठा हूँगा, इसलिए इस लड़की को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं कि जिनके पास आँखें होती हैं, वो कभी-कभी अपने सामने वाली चीज़ों को नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी आँखों को ग्रहण करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उनसे नज़रअंदाज हो जाती हैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। ओके, सो अब वो आगे बोलते हैं कि आई डिडंट सी यू इधर। आई सेड, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, मैंने सुना कि तुम आई। ओके, और कैसे सुना? यस, उनकी उस लड़की के चप्पल की आवाज़ से उन्होंने जाना कि कोई अंदर आया है। और इस समय जो है वो राइटर चाह रहे हैं कि उस लड़की को बिल्कुल भी पता ना चले कि वो इस टाइम देख नहीं पा रहे हैं, और ऐसी-ऐसी बातें वो करते हैं ताकि बिल्कुल भी इस लड़की को पता ना चले कि इस टाइम वो टोटली ब्लाइंड है। वो गर्ल बोलती है कि वो सहारनपुर तक उतरेगी, सहारनपुर में उतरेगी जहाँ उनकी आंटी उनको मिलने आएगी, एंड वो ये भी जानना चाहती है कि कहाँ तक जा रहे हैं राइटर, जो कि वो बताते हैं कि पहले वो देहरा देहरा तक जाएँगे, उसके बाद मसूरी, जिसके बारे में वो गर्ल बोलती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम मसूरी तक जा रही हो। मुझे वहाँ के हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली अक्टूबर में। देन राइटर बोलते हैं कि यस, अक्टूबर जो है वो बेस्ट मंथ होता है वहाँ जाने के लिए, और मसूरी जाने के लिए, बिकॉज़ पूरे की पूरी जो घाटियाँ होती हैं वो जंगली डालिया से भरे हुए होते हैं अक्टूबर में। एंड सन भी बहुत अच्छा होता है, यानी सूर्य की रोशनी ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ना बहुत मध्यम होती है। thereafter रात में लोग लॉग फायर के पास भी बैठ सकते हैं, यानी लकड़ी के आग जला के भी सामने बैठ सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जा चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर जो है वो बेस्ट टाइम है। एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट, एंड इट सेज वी हैव यस सेकंड पार्ट। She was silent. I wondered if my words had touched her, or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. Why don't you look out of the window? She asked. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it. Making a pretense of studying the landscape, I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph post flashing by. सो वो लड़की जो है वो साइलेंट है ज़्यादा। जो राइटर हैं वही बार बार कुछ ना कुछ पूछ के उससे बात करने को कोशिश कर रहे हैं। और दरअफ्टर वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ये लड़की मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझ रही है। और इस समय वो एक और मिस्टेक कर जाते हैं, वो लड़की से पूछते हैं कि बाहर कैसा है, ठीक है, बाहर का दृश्य कैसा है। और इस क्वेश्चन पे वो समझते हैं कि अब तो मैं गया, अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, ज़रूर इस लड़की को पता चल जाएगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो जैसा रिप्लाई वो लड़की करती है, उससे ये सारे डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं उनके, ठीक है? वो बोलती है कि तुम मुझसे जो पूछ रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते कि बाहर कैसा दृश्य है?
और इस बात पे राइटर जो हैं वो ऐसे ही प्रिटेंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, खिड़की के पास बैठ जाते हैं वो और बाहर के सीन को देखने का बस यूँ ही ढोंग करते हैं। ओके? thereafter वो भले कुछ नहीं देख पा रहे हों पर उनको सारे इंजन्स की आवाज़, जो पहियों की आवाज़ है, वो सारी चीज़ें वो सुन पा रहे हैं, सब कुछ उनको सुनाई दे रहा है। thereafter आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट पेज वी हैव इन द नेक्स्ट पेज Yes. Have you noticed, I ventured, that the trees seemed to be moving while we seemed to be standing still? That's always happens, she replied. Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in a silence. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring. But it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly. It's nice to be told that I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. Oh, sure you do have a pretty face, thought I. And aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. You're a gallant young man, she said. But why are you so serious? I thought then that I would try to laugh for her. But the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. Well, we'll soon be at your station, I said. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice. Her voice had a sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey. So, what is happening over here? अब क्या हो रहा है? उन्होंने एक और साहस का काम किया, ठीक है? एक और रिस्क वो लेते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुमको दिख रहा है, तुमको तुम महसूस कर रही होगी कि ऐसा लग रहा है कि ट्री जो हैं वो सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है? आपने भी अगर ट्रेन की यात्रा की होगी तो आपने भी बच्चों नोटिस किया होगा कि जब हम ट्रेन में बैठ के खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक जगह कहीं बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें, पेड़, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने ये सब कुछ दौड़ रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। ओके, सो ऐसा ही वो लड़की को बोलते हैं। तो वो लड़की बोलती है, यस दैट्स ऑलवेज हैपेंस। ओके, ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है, ऐसा तो होते रहता है, इसमें नया क्या है? साथ ही साथ वो लड़की बोलती है कि क्या तुमको कोई एनिमल दिख रहा है? तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेखक जो हैं वो बोलते हैं नहीं, बिकॉज़ उनको पता है कि बहुत कम ही एनिमल्स देहरा में बच गए हैं। नाउ अब वो अपने फेस को विंडो से हटा के लड़की की ओर करते हैं, थोड़ी देर वो साइलेंट बैठते हैं, फिर एक और बात वो उस लड़की के बारे में उसको बोलते हैं दैट यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। लड़की को वो बोलते हैं कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है और लड़की इस पे बहुत हँसती है और वो बोलती है कि चलो किसी को तो मेरा फेस इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मुझे यही बोलते हैं दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, सॉरी प्रिटी फेस। मेरा फेस बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर हूँ मैं। ओके, सो अब यहाँ पे वो बोलते हैं ये सारी चीज़ों को बोलने के बाद बातचीत आगे बढ़ती है और वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत बहादुर यंग मैन लगते हो, लेकिन तुम सीरियस क्यों हो? इसका जवाब राइटर नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज़ वो इसको बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो इस टाइम अंधे हैं, इसलिए वो इतना सीरियसली बिहेव कर रहे हैं। और बात को वो किसी और ले जाते हैं, किसी दूसरी ओर ले जाते हैं और बताते हैं उस लड़की को कि हम लोग बहुत जल्दी तुम्हारे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। जिस पे वो लड़की बोलती है कि उसे बिल्कुल भी बड़ी लंबी जर्नी पसंद नहीं है, 2-3 घंटे से ज़्यादा उसको ट्रेन में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि राइटर चाहते हैं कि वो लड़की वहीं बैठे रहे और पूरी यात्रा में वो उसके साथ बैठे रहे। उसकी आवाज़ जो है वो उनको पर्वत से गिरते हुए झरनों के जैसे लग रही है। भले वो लड़की वहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसकी याद जो है वो इस यात्रा के अंत तक लेखक के पास रहेगी।
Okay, this is the end of the second part. Now let's move to the third and the last part of this story. And it says, the engine's whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and a high pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair bun. She moved away, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an ample apology. Then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. Once again, I had a game to play and a new traveler. The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game, guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. You must be disappointed, he said. I'm not nearly as attractive as a traveling companion as the one who just left. She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन जो है वो आगे बढ़ती है और बहुत जल्दी अब स्टेशन पे रुकने वाली है, वही स्टेशन जहाँ पे वो लड़की उतरेगी। वो लड़की सारे अपने थिंग्स को, सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है और यहाँ पे लेखक को समझ में नहीं आता कि क्या उस लड़की के बाल जो हैं वो खुले हैं या फिर उन्होंने उसने एक जूड़ा बनाया है। शायद उनको लगता है कि इसके हेयर जो हैं वो शोल्डर्स तक हैं और वो खुले हैं। क्या वो खुले हैं, छोटे हैं, इसका वो उनको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। देयरआफ्टर अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पे रुक जाती है और बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे फेरी वाले, बहुत सारे जो बेचने वाले लोग होते हैं वो सारे, उनकी आवाज़ आ रही है। साथ ही साथ एक औरत की भी आवाज़ उनको सुनाई दे पा रही है, जो कि ज़रूर उस लड़की की आंटी होगी। अब वो लड़की उतरने को है और वो बहुत क्लोज़ आ जाती है राइटर के पास, क्योंकि उनकी परफ्यूम जो है, उसके हेयर की परफ्यूम और उसकी बॉडी की परफ्यूम उसको राइटर को स्मेल हो रही है। वो लड़की वहाँ से उतर जाती है, फिर भी उसके परफ्यूम जो है वो थोड़ी देर के लिए उस कंपार्टमेंट में रह जाती है। रास्ते में जब वो लड़की उतर रही होती है ट्रेन से, तभी एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है। एक आदमी अंदर आ रहा है और वो लड़की नीचे उतर रही है। तभी उन दोनों के बीच थोड़ी-सी टक्कर होती है और वो आदमी उनसे क्षमा माँगता है। देयरआफ्टर वो आदमी अंदर आ जाता है, नया व्यक्ति, और लड़की उतर जाती है। और राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि अगेन मेरे पास एक और नया गेम है, एक नया पैसेंजर, एक नया अजनबी, जिससे कि मुझे फिर से एक गेम खेलना है। एंड व्हाट इज़ द गेम? यस, यह गेम कि उसे छुपाना है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, राइटर देख नहीं पा रहे हैं ये चीज़ उनसे, अभी जो नया यात्री आया है उससे भी उनको ये बात छुपानी है। सो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बाहर हो रही होंगी, लेकिन मैं बस गेस ही कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। वो व्यक्ति जो अंदर कंपार्टमेंट में आया है, वो बोलता है कि राइटर को बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बिकॉज़ तुम्हारे पास, तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो पहले लड़की थी वो इतनी सुंदर थी और मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। सो राइटर पूछते हैं उनसे कि क्या तुमने देखा कि उसके हेयर जो थे वो लंबे थे या छोटे? नाउ व्हाट इज़ द न्यू मैन इज़ गोइंग टू रिप्लाई। अब वो क्या रिप्लाई देता है? लास्ट लाइन, सी द लास्ट लाइन। आई डोंट रिमेंबर ही
said, sounding puzzled. It was her eyes, I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? तो जो व्यक्ति है वो उसको बोलता है कि मैंने उसके हेयर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी आईज देखी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, उस उन आईज का कोई यूज़ नहीं था, बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। ये बहुत शॉकिंग बात वो बोल देता है। ठीक है, उस राइटर को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जिस लड़की से वो बातें कर रहा है वो भी देख नहीं पा रही है। और दोनों यात्री जो हैं वो शुरू से लेके अंत तक एक दूसरे से यही बात छुपा रहे हैं कि वो दोनों देख नहीं पा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रेंज थिंग, दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग ऑफ दिस स्टोरी। और ये स्टोरी की सबसे सरप्राइजिंग बात है। ओके, एंड हियर एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी वी हैव ऑल्सो एंड ऑफ द थर्ड पार्ट, and it has two questions are there. Let's know about the writer, and the writer is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He was born in Kausali, Himachal Pradesh on May 19, 1934. He lives in a Landua, a hill station in the Himalayas near Mussoorie. He has written over 100 short stories, essays, novels, and a great many books for children. Bond was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. सो रस्किन बॉन्ड जो हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश हैं, और ब्रिटिश थे, एंड उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कौसाली नामक जगह में हुआ था, और एक हिल स्टेशन है हिमालयाज़ के पास। ठीक है, लैंडो, वहाँ पे वो रहते हैं, जो कि मसूरी के नियर है, मसूरी के नज़दीक है। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़, एसेज और नॉवल लिखे हैं, और बहुत सारी किताबें उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखी है। इस कारण से उनको हमारे देश के बहुत बड़े-बड़े अवार्ड्स मिले हैं। दैट इज़ पद्मश्री 1999 में, और पद्म भूषण उनको मिला है 2014 में। ओके, so here we have some difficult words. That is, flatter means to praise someone or more than need. Okay, means एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी की प्रशंसा कर देना। Tantalize means tease, छेड़ना। Then exclamation, a sudden remark expressing surprise, कोई भी चीज़ बहुत आश्चर्य से कही हुई चीज़। Then register is to record, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, understand. Window ledge, window sill, ठीक है। Then pretense we have act, that is also आप कह सकते हैं दिखावा करना। Then venture, यहाँ जर्नी लिखा है, बट हियर द वेंचर मीन्स यहाँ पे जर्नी नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा जोखिम उठाना या फिर रिस्क लेना। ओके, देन एनकाउंटर मीन्स अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, और वैसी मीटिंग हो जाती है, यानी सडन मुलाकात, अचानक मुलाकात होना। देन स्क्रीम्ड, स्ट्रिक्ड मीन्स स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। Lingered means stayed, रहना. Then stammered means spoke haltingly. Okay. Then berth, a place to sleep on a train. ट्रेन में सोने वाली जगह। देन स्पार्कल वी हैव शाइन ब्रॉडली, बहुत चमकदार, चमकीला, शाइन करने वाला चीज़। देन रेवरीज, डीप इमेजिनेशन और ड्रीम, ठीक है, गहन चिंतन या स्वप्न। सो दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी, एंड आई होप आप ये सारी स्टोरी को समझ गए होंगे। So this is all. Thank you.